She comes from a medical background. She was a NEET aspirant earlier. She has no formal background in mathematics. So mid 12th, I got to know about the IP MAT exam, and before that, I didn't even knew the full form of even IIMs. First thing I did was to delete all my social media apps. I had this habit of studying for like 9 to 10 hours without any problem. We also have Shweta's mom here. तो अब जैसे उनका कन्वर्ट हो गया तो अब पापा क्या बोलते हैं? पापा बहुत खुश है, खुश हैं? बहुत खुश है। अब तो पापा बोलते हैं कि वाह, मेरी बेटी ने नाम कर दिया। Hello everyone, welcome to iQuanta Topper Talks. I'm Yogesh and today we are going to talk to one of our toppers, iQuanta IPMAT toppers, Shweta. And she's a truly inspiring student because she comes from a medical background. She was a NEET aspirant earlier. She has no formal background in mathematics, but she still managed to crack one of the toughest exams in India, ITMAT Indore. And today we are going to talk to her. We are going to ask her what was her journey, कैसे उन्होंने अपनी पूरी studies को plan किया. You know that when you come from non-math background, काफ़ी सारे और self doubts भी होते हैं students को. तो ये podcast उनके लिए भी बहुत important है जो बच्चे नॉन मैथ्स बैकग्राउंड से आते हैं, बायोलॉजी में भी कॉमर्स विदाउट मैथ्स, उनको लगता है कि हमने मैथ्स काफ़ी पहले छोड़ दिया है, शायद हमारे लिए अब दोबारा मैथ्स सीखना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा. सो यू हैव एन एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ यू. लेट्स टॉक टू श्वेता. हाय श्वेता, कंग्रेचुलेशंस ऑन क्लियरिंग IIM इंदौर. Thank you so much, sir. So, hello everyone. I'm Shweta Singh, and I've converted. I'm Indore, I'm Rohtak, and I'm Ranchi ITM. So my journey started in class 11th. I chose PCB as my stream, mainly because my parents wanted me to, and they wanted me to become a doctor. Always in the back of the mind, I always had this idea of having my own startup and maybe working in a firm, but I didn't have the courage to say that out loud. So in class 11th, I gave NEET mocks. I prepared for NEET exam. I solved NEET questions from biology to physics, everything. And then 12th came. So mid 12th, I got to know about the IP MAT exam, and before that, I didn't even knew the full form of even IIMs. So that's where my whole journey changed. But I came from school. One of my friends told me about IP MAT because his brother was preparing for, and I came from school. I just googled IP MAT, and then I saw that maybe this is too big for me. Maybe I'm not cut out for something Yes. this big. But after a few weeks, it always lingered in the back of the mind. So I still haven't had the courage to tell my parents that. After my 12th boards, I thought to maybe give IP MAT, but how would I tell my parents? Right. So there was some problem with my Aadhaar card issue. There was some issue. So I wasn't able to register for the NEET exam, Okay. but there was something very big for me planned. So I gave the IP MAT Indore exam for the first time in my class 12th, and that changed my whole journey. I gave the exam. Obviously, I didn't clear it, but it gave me the clarity what I needed to do in my life, what I want to do in my life. And then I told my parents that I want to give IP MAT Indore. I wanted to go in a business and management Right. field, and they were taken aback. They were shocked. So मतलब you are saying कि IPMAT happened to you by accident. It was. I was sitting in a biology class when my friend told me about IP MAT, and that changed everything. ओके, सो श्वेता, जैसे आप नीट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे थे ऑलरेडी 2 साल से, मतलब इट वुड हैव बीन वेरी करेजियस फॉर यू टू टेल योर पेरेंट्स फाइनली कि यार मुझे नीट नहीं करना है, मुझे आईपी मैट की तरफ को जाना है. तो सबसे पहले आपने किसको बताया? I told my mom first, Okay. and I was kind of scared that how would she react. Right. I mean, that's a very big decision. हाँ, बहुत सारा पैसा लगता है प्रिपरेशन में 2 साल. The trajectory of my life from preparing for NEET in my class 11th and 12th, and suddenly उनको ऐसे बोल देना कि I'm going to give IP MAT Indore now. And same as me, उनको भी नहीं पता था IP MAT के बारे में. They knew very little about CAT. So then I told her about it, and she supported me. She supported me till the very end, and she is my number one supporter. So I think I owe my biggest credit to my mom. ओके, सो बेसिकली दिस इज फॉर ऑल द स्टूडेंट्स एज वेल. काफ़ी बच्चे नहीं बता पाते अपने पेरेंट्स को. शायद लास्ट मंथ पे, आई मीन आई शुड टेल यू दैट ये श्वेता का लास्ट अटेम्प्ट था, राइट?
Yeah, true. सो इन हर लास्ट अटेम्प्ट इन्होंने आई एम इंदौर दिया, क्रैक किया, भी नीट प्रिपरेशन छोड़ करके। तो काफ़ी बार ना स्टूडेंट्स को ये लगता है कि हम अपने पेरेंट्स को कैसे बताएं, तो अगर आप कॉन्फिडेंट इनफ हो, आप बिल्कुल बता सकते हो कि प्रोबेबली दिस माइट हैपन टू यू, राइट? एंड Yeah. आपसे तो खैर बहुत ही अच्छा हुआ है, इजंट इट? So after my first attempt, I came back home from the center, and my dad was like, "So, are you going to take a drop for NEET?" And I was silenced. Then I softly said, "Papa, I want to do IP Mat. I want to make my career in business and management. I've always wanted this, but I never had the guts to tell you." And he was shocked as well. But initially, he did not support my decision. But seeing my dedication, seeing my hard work, he came around and supported me too. ठीक है श्वेता, तो एक क्वेश्चन और है। जैसे आपने ड्रॉप लिया है, राइट? तो ड्रॉप ईयर में बच्चों पे एक बहुत बड़ा प्रेशर होता है। जैसे हम लोग अपने दोस्तों को देख रहे होते हैं कि दे आर गोइंग टू कॉलेजेस, कोई एग्जाम फोड़ रहा है, बिल्कुल एकदम कॉलेज एंटर कर रहा है, और हम नीट छोड़ के आईबी मैट पढ़ रहे हैं, वो भी ड्रॉप ईयर में। तो वो एक जो प्रेशर होता है पूरे साल भर ना, कि मेरा होगा नहीं होगा, एक फियर ऑफ फेलियर भी हमारे दिमाग में चल रहा होता है। हाउ डिड यू डील विद दैट? व्हाट वाज दैट समथिंग व्हिच केप्ट यू गोइंग ऑन अ डेली बेसिस? The first thing I did was to delete all my social media apps, because that's the place जहाँ मैं देखूंगी my friends enjoying in their college. Their fests, they're much more in college, and Right. I would be so disappointed in myself to see others like that. So first of all, I did that. Then I was sure that I want to do IP Mat. So I started thinking about coachings. Now I am someone who had no idea about IP Mat before. So I needed a coaching to guide me. So I talked to multiple coachings, and some even said to me that you should try for CAT, because IP Mat, you had bio, and IP Mat is something which is kind of out of your reach. And I was so demotivated that day. I was really thinking about my life decisions, what I'm doing wrong. But then I knew ki I have to do it. I mean, nothing is impossible really. So I then talked to one of iQuanta mentors, and I told him from the very start, "Sir, I had PCB in my 12th. Will I be able to clear it? And क्या scratch से पढ़ाएंगे maths?" So he said, "Sure, scratch से पढ़ाएंगे. You can take 1 or 2 demo classes also." Right. So I did that, and Raj sir teaches very well. He teaches maths from scratch. And I still remember when logarithms chapter was starting, and I was so scared that I haven't studied that chapter before. And he explained with such ease, I understood the whole chapter, even with the biology background. ओके, सो देखो यार, इन्होंने एक बहुत अच्छी एडवाइस दी कि अगर हम और कुछ कंट्रोल नहीं कर सकते, तो एटलीस्ट हम अपने आसपास का ऑरा कंट्रोल कर सकते हैं। कि चलो, मैंने अपनी सोशल मीडिया ऐप से डिलीट कर दी, क्योंकि ऑब्वियसली होता है कई बार, वी आर हिट बैक बाय दोज थिंग्स, इजंट इट? कि बाकी सब कोई सक्सेसफुल हो रहा है, मैं ही ड्रॉप लेकर के पीछे जा रही हूँ लाइफ में। तो दैट इज़ अ वेरी गुड एडवाइस कि अपना डिस्ट्रैक्शन खुद से आपको कम करना पड़ता है। जैसे कई बार बच्चे पूछते हैं ना कि मैं ऐसा क्या कर लूँ, उनको इंस्टा भी चलाना है, उनको यूट्यूब भी चलाना है, उनको स्नैप भी चलाना है, बट वही होता है कि वो चला करके आपका बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाता है, इज़न्ट इट? सो ये तो बहुत अच्छी एडवाइस है। सारे एस्पिरेंट्स इसको प्लीज़ ध्यान में लाओ। मैं तो कह रहा हूँ अभी अपना इंस्टा और स्नैप जितना से डिलीट करो। Delete it. राइट। तो श्वेता, नेक्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम द स्टूडेंट्स दैट हैव जॉइन द iConda कम्युनिटी। बहुत सारे बच्चे आपसे पूछना चाहते थे कि आपने कैसे अपना टाइम स्लॉट बना करके रखा था? आप कोई पर्टिकुलर टाइम शेड्यूल फॉलो करते थे, या फिर आप बस सॉल्व ही करते रहते थे? तो वो बताओ कि कैसे आपने स्ट्रक्चर किया अपना प्रिपरेशन अराउंड द ईयर? I studied for NEET in my 11th and 12th, and that built a habit in me, that I was very disciplined when it came to studying. So I had this habit of studying for like 9 to 10 hours without any problem. So I used to go to library like in the morning, maybe 7 a.m., 8 a.m., and I used to come back home at 8 p.m., 9 p.m. So the whole time I had things scheduled for me per hour. Like I have to do English, BARC, from like 8 a.m. to 11 a.m. And the biggest mistake IP Mat aspirants do is ignore BARC, because they think that they are good at English, they're from CBSE, ICSE board, and they're going to ace it. That's not the reality. BARC is very, very important, and it's something which is going to fetch you marks. So do not ignore BARC. And for quants, I used to
watch Raj sir's lecture, the recorded ones, and then solve questions from iQuanta books as well, and from other books also. From even I solved CAT PYQs and things like that. I gave mocks and sectionals a lot, and they helped me a lot in this journey. अच्छा, आपने बोला कि आप नीट के लिए 9-10 घंटा पढ़ते थे, आप आईपी मेट के लिए कितने घंटे पढ़ते थे? ये भी बच्चों को बताओ, बिकॉज़ काफ़ी लोग यही पूछते हैं सबसे पहले। फर्स्ट क्वेश्चन यूजुअली टू द मेंटोर्स इज़ कि सर मैं आईपी मेट के लिए कितने घंटे पढूँ? मुझे लगता है कि शायद कोई 5 या 6 घंटे का कोई सीक्रेट सॉस है कि मैं पढ़ के क्लियर कर दूँगा। हाउ मच वर यू स्टडीइंग एक्चुअली फॉर आईपी मेट? I was studying for 10 to 12 hours every day. I'm not going to lie, because my base form was different from others. I was from biology background, so maths was a task for me. Right. It was an obstacle I had to overcome. So I knew I had to put extra efforts to actually be with to be at par with students who Right. are coming from maths background. So if someone is from JE background, let's say, उनको इतनी दिक्कत नहीं होगी इसमें, बट आई वॉज फ्रॉम बायोलॉजी, सो मुझे डालने थे उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स. So it depends on your base. If you're really really good with maths, then it will not be very कि आपको 10 घंटे पढ़ने हैं या 12 घंटे पढ़ने हैं, बट just know your base. एग्जैक्टली सो देखो, शी वाज स्टडिंग 9 to 10 आवर्स फॉर नीट एंड उन्होंने अपने आवर्स बढ़ा दिए फॉर आईपी मैट, तो ये आपको करना पड़ता है ऑब्वियसली। ओके, खासकर आप ड्रॉपर हो, राइट? सो बच्चे कई बार ये भी पूछते हैं कि सर आई एम अ ड्रॉपर, मैं कैसे प्रिपेयर करूं? तो यार आप अगर 10-12 घंटे नहीं डालोगे ना, तो वो जो यू लिव विद द एग्जाम फॉर दैट मच ऑफ द टाइम। आप दिन में आपके माइंड में जब वो चीज़ें चलते रहती हैं, वहीं से आपको चीज़ें याद भी होती हैं, आप नई चीज़ें, नए methods, you devise new methods, isn't it? True. So That's very आपको मतलब एक ड्रॉपर हो अगर यार, तो आप ये नोट कर लीजिए कि कम से कम यार 10 घंटे हम पढ़ सकते हैं। मतलब अगर ये शी कैन पुल ऑफ, आप भी पुल ऑफ कर सकते हो। खैर स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स का तो समझ में आता है कि हाँ. वो चलो 4 घंटा भी दे दे तो बहुत ज़्यादा होता है, बट 10 घंटे ड्रॉपर को यार देने ही देने चाहिए। खासकर ड्रॉपर्स पे तो मैं बोल रहा हूँ ना कि अलग से प्रेशर होता है। और कई बार आपको एज अ ड्रॉपर मतलब इंटरव्यू में भी जाना होता है, तो पहला हमें डर ये रहता है कि यार आपके पास तो खैर 2-2 चीज़ें थी कि भाई मेरे को नीट पे भी पकड़ेंगे और ड्रॉप पे भी पकड़ेंगे। तो क्या आपसे पूछा था ये क्वेश्चन उन्होंने? Yes, in every interview I gave, राइट। be it I'm Rohtak, I'm Ranchi, I'm Indore, they asked me this one question. You had biology in your class 12th. Why not NEET? Why IP Mat? And after they asked me a CADS question, there was also a question. You're so good with the CADS. You're past academics. So आप MBBS क्यों नहीं करना चाहते हो? And there was one more question also. They asked me that people are here from maths background also. How will you compete with them? And I told them that, sir, I think the foundation of starting a BBA program at any IIM is the syllabus, the math syllabus they have. Right. So if I can clear the cutoff, which is something math students are also doing. Exactly. So if I am at par with those students in clearing the cutoff, I think I'd be able to manage maths in my college too. So they were impressed by this answer. एग्जैक्टली सी देखो, आपने आपको ना अपने अपने आंसर्स बनाने होते हैं, अपनी सराउंडिंग से बनाने होते हैं, है ना? तो कई बार ये भी बच्चों से पूछा जाता है कि यार आप क्यों मैनेजमेंट करना चाहते हो? लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इवन आंसर दिस कि भाई मैंने, जैसे कई बार कैट में भी बच्चों ने मुझे बोला है कि भाई हम लोग अपनी प्रिपरेशन को मैनेज कर रहे हैं, हर एक चीज़ को मैनेज कर रहे हैं, वी आर ऑलरेडी अ गुड मैनेजर। जैसे कई बच्चे वर्क एक्सपीरियंस के साथ भी स्कूल के साथ आईपी मैट क्लियर करते हैं, इजंट दैट मैनेजमेंट? है ना? मतलब स्कूल के साथ पढ़ना, आईपी मैट के लिए अलग एग्जाम के लिए, बोर्ड के लिए पढ़ना, एंड क्लियरिंग ऑल 3 गुड अकेडमी, जैसे आपने बोला आईपी मैट क्लियर करना, दैट इज ऑल्सो मैनेजमेंट, इजंट इट? सो बिल्ड योर ओन आंसर्स, obviously इंटरव्यू में दैट ओनली हेल्प्स यू, राइट? सो श्वेता, यू आर अ परफेक्ट एग्जांपल्स फॉर नॉन मैथ स्टूडेंट्स एज वेल, कि भाई नॉन मैथ स्टूडेंट्स को फोबिया जो लगा हुआ है मैथ्स का, एक जो साइकोलॉजिकल फियर उनके दिमाग में गया हुआ है कि नहीं कर पाएंगे हम मैथ, हम तो कब के छोड़ दी 10th में, है ना? उसको कैसे आपने ओवरकम किया और क्या एडवाइस आप देना चाहोगे नॉन मैथ स्टूडेंट्स को? Honestly, I was good at maths in my 10th. So I initially thought that it wouldn't be that hard. But when I opened the books and started solving questions, even of arithmetic, I went blank. I was like, is this for me? Am I will I be able to do it? And I just think that start everything from scratch. JE aspirants and people who had maths in their class 12th will be able to do questions. Do not get demotivated by that. You know your base, just start from scratch. Do everything from scratch, and just do not be ashamed to ask questions from your mentors. Do not shy away from them. So that is the biggest advice I'll give. And second is just be consistent with your preparation, because studying 10 hours one day and not studying for the next 2 days will not help.
even if you're studying for 5 hours every day, just do it every day. It will be a lot more fruitful. जैसे मैं आपसे एक चीज़ पूछूँ अगर कि चलो आप मुझे बताओ कि नीट की बायोलॉजी ज़्यादा डिफिकल्ट है या आईपी मैथ का मैथ ज़्यादा डिफिकल्ट है, आप किसको ज़्यादा डिफिकल्ट बोलोगे? IP Math का maths, it's much more देखो difficult. यूजुअली होता ऐसे है कि यू ऑल्सो नो कि भाई बायोलॉजी भी एक इन डेप्थ सब्जेक्ट है, वहाँ पे भी बहुत कुछ आपको याद करना पड़ता है, डायग्राम्स हैं, आई डोंट नो क्या-क्या बायोलॉजी में होता है, आई कम फ्रॉम पीसीएम बैकग्राउंड। बट वही है कि अगर आप मैथ को एक सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करते हो, इज़न्ट इट? बायोलॉजी आल्सो यू आर फाइटिंग विद अ लॉट ऑफ कांसेप्ट्स एंड ऑल, राइट? सो इन्होंने एक बहुत अच्छी बात बोली है कि हर कोई स्क्रैच से ही स्टार्ट कर रहा है। तो जैसे कि आईआईटी वाले भी यार एक जगह से शुरू करते होंगे, है ना? अगर आप वही चीज़ खुद पे अप्लाई करते हो कि मुझे भी एक बार स्क्रैच से शुरू करके देखना चाहिए एंड धीरे-धीरे आई विल बिल्ड अप माय लेवल, है ना? अपनी डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएँगे तो ईज़िली यू कैन डू इट, ओके? सो श्वेता, वन मोर क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स ने हमें बोला आपसे पूछने के लिए कि कई बार ऐसे मैथ्स में टॉपिक्स आते हैं जो आपको समझ में नहीं आते पहली बार में। मतलब हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, पहली क्लास है, बेसिक क्लास है, फिर भी समझ में नहीं आते हैं। तो उन टॉपिक्स को कैसे आप सीख रहे थे बाद में? So, I think I actually experienced this feeling एक बार क्लास थी राज सर की एंड उसमें वो मॉडर्न मैथ्स स्टार्ट कर रहे थे. सो एवरीबडी वाज आंसरिंग क्वेश्चंस ऑफ मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स. आई कुड नॉट अंडरस्टैंड अ सिंगल थिंग. आई डिड नॉट अंडरस्टैंड कि लाइंस क्यों बना रहे हैं. एंड for that I messaged Raj sir. I said, sir, I do not know about it. And उन्होंने कहा just watch that video 2-3 times. And I did. And I kind of understood what he's trying to say, what it is really about. And I think वहाँ से you can get the rough idea. Now आप take any book. I took iQuanta's book and there were some theory also. So आप एक बार theory को and then the questions start from the very easy ones which will build your base and then move on to the higher difficulty ones and then mocks दो. now बहुत लोग का ये रहता है that they think 100% syllabus completion के बाद mocks देंगे. Right. But that is not true. If your 50% syllabus is complete, then start giving mocks because giving mocks is not a mirror honestly. आपके कितने marks आ रहे वो matter नहीं करता है. The more you're analyzing your mocks, this is what really matters. Right. आप 10 mark देंगे and you're analyzing it is better than 50 marks and you're not analyzing those. राइट. सो इन्होंने एक बात बोली कि थोड़ा पेशेंस चाहिए होता है काइंड ऑफ, इज़न्ट इट? कि नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार के लिए पेशेंटली देखो चीज़ों को, प्रोबेबली आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कई बार एक क्वेरी आती है बच्चों की कि सर मैंने एक मैथ्स का क्वेश्चन किया क्लास में तो आपने अच्छे समझाया, मैं जब दोबारा गया खुद से करने मेरे से नहीं हुआ। तो मतलब हम उनको एक एडवाइस देते हैं कि एक बार आप देख कर ये करो, दूसरी बार आप खुद से सोच के करो, तीसरी बार यू जस्ट स्टॉप यूजिंग एनीथिंग, क्लू भी लेना बंद कर दो, अपने दिमाग से करो. That is how, if you do that repeatedly, it obviously it builds up your concept as well and confidence as well, isn't it? ठीक है, तो श्वेता आपने लगभग कितने मॉक्स दिए थे और कब से आपने मॉक देना स्टार्ट करते थे? ये भी एक क्वेश्चन है बच्चों का. I think I started giving mocks in November, November 2024, and I gave at least 30 full mocks of just time in the and then sectionals. So I have no Unlimited. count of them. So yeah. सो 30 मॉक यार लिखने चाहिए. कई बच्चे क्या करते हैं ना कि मॉक्स नहीं रहते हैं, जैसे जनरली थ्योरी कंसेप्ट आ जाता है, दे आर वेरी कॉन्फिडेंट. आपने मतलब मॉक्स देने के बाद क्या इम्प्रूवमेंट देखा अपनी प्रिपरेशन में, और क्या उसने आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप किया मॉक प्रिपरेशन में? So one thing I've realized कि NEET has a lot of syllabus. So people are trying to just cram up the syllabus NEET में. But in IB Mat and CAT it's different. Syllabus कम है, but you need to practice more. So people who are not giving mocks are really missing out on concept clarity. आपका सबसे ज़्यादा concept clarity सिर्फ mock से हो सकता है. And जब आप उनको analyze करते हो, relevant questions देखते हो, you start understanding them more. Then आपको PYQs करने में काफ़ी आसानी रहती है. And sometimes like बहुत ही नया question आता था. I used to chat GPT it and I used to say that give me 4-5 more questions similar to this. And I used to solve them too. So you need to just get a grip on the different kind of questions. राइट. सो सी बेसिकली मॉक्स का नंबर इन्होंने आपको बता दिया है. अगर आप उससे कम मॉक्स एम कर रहे हो यार, ऐसा होता है ना कि जितने ज़्यादा मॉक्स आप दोगे उतना अच्छा टाइम मैनेजमेंट, उतनी अच्छी डिसीजन मेकिंग पावर हम बनाते हैं, इज़न्ट इट? मतलब इफ़ आई एम समबडी जिसने 5 मॉक दे रखे हैं और एक छठा डिफरेंट टाइप ऑफ मॉक मेरे सामने आ गया, तो शायद मैं उतने इफेक्टिवली डिसीजन नहीं बना पाऊंगा, बिकॉज पेपर इज ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग एज वेल. कि भाई क्वेश्चन देखा 30 सेकंड में डिसाइड करना है कि मेरे को ये करना है नहीं करना है. बड़ा क्वेश्चन आया तो 40 सेकंड में, इज़न्ट इट? सो डोंट यू थिंक कि डिसीजन मेकिंग
एबिलिटी जो आपकी होती है एग्जाम के टाइम पे वो भी मॉक से बहुत ज़्यादा इंप्रूव होती है। गुड सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चंस आई वुड से। It matters a lot. मैं start में I was not good at selecting questions, so I was scoring low, and that hit me with, like, I scored in double digits once, and I cried that day because after even preparing, if I'm scoring in two digits, then so I actually started thinking about it, and the best way was to choose good questions. I used to Right. choose the long ones. राइट। So आपको easy questions में भी +4 मिल रहा है, आपको long questions में Right, +4 मिल रहा है. It's your selection of questions. So selecting questions is very important. In IPMAT, you do not have to score pura. You do not have to score 60 out of 360 out of 360. एग्जैक्टली। You need to just clear the maths cutoffs. If you're from non-math background, just ace in BA and clear the maths cutoffs. सो बहुत अच्छी एडवाइस उन्होंने दी है कि देखो वर्बल के बिना ना आप कभी एग्जाम क्लियर नहीं कर पाओगे। आप क्वांट्स में नंबर खींच सकते हो बट आपने जनरली देखा होगा क्वांट्स में तेरा नंबर ला नहीं पाते। कट ऑफ कहाँ है? बहुत नीचे है, राइट? मतलब 60 में से 24, 120 में से 28, दैट इज नॉट इवन, मैं बोलूँ पासिंग मार्क्स भी नहीं है वो एक तरीके से, अगर आप 33% देखते हो जनरल पासिंग मार्क्स, राइट? तो वर्बल तो आपको बिल्कुल करना ही करना है। मैक्सिमम बच्चे आजकल क्वांट की किताब पूछते हैं कि कौन सी शुरू करूँ, उसी में लगे रहते हैं। व्हाट वुड यू से टू दोज स्टूडेंट्स? मतलब आपको वर्बल ने कैसे कैसे हेल्प किया उस स्कोर तक जाने में एंड फाइनली क्रैकिंग द एग्जाम? I think verbal helps a lot. It will fetch you the most marks. आपका जो base बनेगा verbal की वजह से, like let's say you even scored 100 marks in verbal, and maths में scoring 50, so that's 150. So verbal ability is something that most people ignore, and I think they shouldn't, because verbal ability is the thing that इज द गेम चेंजर। is the game changer, really. तो श्वेता, वही आप कह रहे थे कि आपने डबल डिजिट स्कोर्स देखे मॉक में एंड यू क्राइड। सो व्हाट केप्ट यू मोटिवेटिंग ऑन अ डेली बेसिस? बिकॉज हमें पता है कि भाई आ रहा है डबल डिजिट में, हमें जाना वहां पर है ना? तो किस चीज़ ने आपको डेली मोटिवेट किया? टेल अस अबाउट दैट। The one thing that kept me going was the decision I made for myself. That it was purely my decision, and everybody was like, ये नहीं हो पाएगा, because you're from a background जिसमें तुम्हारे पास maths थी, कि जिसमें you're not even from a commerce background. So everybody was kind of against it, and that kept me going. I love challenges. I love to tackle them. So I wanted to prove everybody wrong, and I had a vision board in my mind that, okay, I need to achieve this. So that kept me going. सो यार ये बहुत अच्छी चीज़ है कि मतलब कई बच्चे ना डर जाते हैं। जैसे आपने बोला ना कि शुरू में आप काउंसलर के पास गए, उसने बोला कि आपको तो कैट ही करना चाहिए सीधा। तो वही है कि कई बच्चे ना डर जाते हैं, बोलते हैं कि अच्छा मैथ्स बैकग्राउंड से नहीं है, मेरे दूसरे भैया करते हैं, मेरा दोस्त कह रहा था कि आईपी मैट के लिए मत पढ़ वरना तेरा होगा ही नहीं। देखो यहाँ पे आप इसको एज अ चैलेंज भी ले सकते हो एंड ऑब्वियसली मतलब दूसरे को रॉन्ग प्रूव करने में जो मज़ा आता है एक तरीके से वो बिल्कुल अलग ही होता है, राइट? ठीक है। तो श्वेता एक और चीज़, जनरली जो नॉन मैथ वाले बच्चे होते हैं वो बहुत ज़्यादा सॉर्टिंग करते हैं कोचिंग्स की, बहुत चेक करते हैं कोचिंग्स को पहले कि यार सच में मतलब भरोसा नहीं होता एकदम से कि सच में कोई मेरे को बेसिक से पढ़ाएगा नहीं पढ़ाएगा, है ना? तो व्हाट मेड यू चूज आई क्वांटा एंड एज अ नॉन मैथ स्टूडेंट स्पेसिफिकली, है ना? हम बहुत टेस्ट करते हैं कि सच में ये कोचिंग बिलीवेबल है या नहीं है। सो व्हाट मेड यू चूज आई क्वांटा? So, as I mentioned before, one of the counselors said no to me on my face, and she said, try for CAT. Right. And that demotivated me a lot. So, I inquired a lot of coachings. And when it was iQuanta, मैंने call किया and I'm like, sir, I am from a PC background. So, will you teach from scratch? Will I be able to cover up the math syllabus? So, they said yes. And of course, आप एक yes पे believe नहीं कर सकते हो. So, Right. they asked me if you want to join the demo classes. So, I joined it, and Raj sir was teaching very well. And even he started with some different topic, and even that मुझे समझ में आ गया. And Right. I was in just shock that how easy he made it. Right. So that was something that just kept me going. Ki, acha, if I can understand this one topic, I can understand Others. the whole maths. It's not impossible for me. So Shweta, one feature of iQuanta that you liked the most? I think the structural way of teaching, that the recorded classes were there, and the structure. There was a timetable that
अभी अरिथमेटिक टॉपिक भी हो रहा है एंड मॉडर्न मैथ्स भी हो रहा है, सो आप जगल नहीं करते हो किसी चीज़ में, आपको मैथ में बहुत ज़्यादा खिंचता नहीं है आपका सिलेबस। सो दैट वाज वेरी समथिंग विच हेल्प्ड मी अलॉट। एंड देयर वर सेक्शनल मार्क्स आल्सो व्हिच आर नॉट अवेलेबल इजीली। सो सेक्शनल्स आर गेम चेंजर, दे आर नॉट द फुल मार्क, तो उतनी एंजाइटी भी नहीं होती है एंड आप इजीली भी कर सकते हो उनको। ओके, एक और क्वेश्चन, आपको क्या आइक्वांटा की क्लास से कोई क्वेश्चन एग्जाम में दिखा था, सिमिलर क्वेश्चन, एनीथिंग लाइक दैट? There were a lot of similar questions I encountered. One was, I think, the logarithm question, राइट। which Raj sir taught, and I think just थोड़ी values changed थी, बदल बाकी गया। question was kind of similar, and there were two more questions also. So I think the questions which are taught, the relevancy is there. You just have to put in the efforts. सो इन ऑल आवर टॉपर वीडियोस वी यूजुअली टॉक टू पेरेंट्स एज वेल, एंड पेरेंट्स का बहुत बड़ा हाथ होता है बच्चों के फ्यूचर को बिल्ड करने में, उनको सपोर्ट करने में थ्रू आउट देयर प्रिपरेशन। तो वी ऑल्सो हैव श्वेताज मॉम हियर, एंड वो बेसिकली एक मैसेज लेकर के आई हैं बाकी सारे पेरेंट्स के लिए। जैसे श्वेता ने बोला कि नीट नहीं करना है, आईपी मैट करना है, राइट? सो मैम, पहले तो बधाई हो आपको, शी हैज़ मेड इट टू द बेस्ट कॉलेज, है ना, सबसे अच्छे कॉलेज में जा रही हैं। आपको कैसा लग रहा है मैम? मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। सो मैम, जैसे ना पहली बार इन्होंने आपको बताया होगा कि मम्मी मेरे को नीट नहीं करना है, मुझे आईपी मैट की तैयारी करनी है, आपका क्या रिएक्शन था? देखिए, ऐसा है कि जब इन्होंने हमको बताया कि मम्मी हमको नीट नहीं करना है, तो मुझे लगा कि बच्चे को जिस चीज़ में रुचि है, हमें उस चीज़ में सपोर्ट करना चाहिए। बच्चा हमारा जो भी करे, अच्छे मन से करे, तो वो आगे प्रोग्रेस करे। डेफिनेटली। सो मैम, एक बार आपको ये थॉट तो आया होगा ना कि अब तो मेरे को पूरे घर में बताना पड़ेगा, 2 साल की नीट की फीस पे कर दी, जी, जी, अब जी। पापा से क्या बोला जाएगा? पापा को क्या बोला, फिर उनको बोला थोड़ा उनको ये लगा कि नहीं, इसको नीट ही करना चाहिए। हम्म। वो काफ़ी इस चीज़ से थोड़ा-सा वो भी हुए कि गुस्सा हम हुए? हाँ, कि नीट नीट नहीं कर रहे। तो मैंने बोला बच्चे को जिस चीज़ में रुचि है, हम्म। उसी में करना चाहिए उसको। तो अब जैसे उनका कन्वर्ट हो गया, तो अब पापा क्या बोलते हैं? पापा बहुत खुश हैं, खुश है? बहुत खुश हैं। अब तो पापा बोलते हैं कि वाह! मेरी बेटी ने नाम कर दिया, ठीक है। अच्छा कॉलेज मिल गया। राइट। जी। सो मैम, जैसे काफ़ी सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि भाई उनको नहीं एक बार बच्चे की बात समझ में आ रही होती है कि अच्छा इसको जाने देना नहीं जाने देना चाहिए, उनको ऐसा लगता है कि नहीं हमने इसके लिए चूज़ किया है, भाई आईआईटी करेगा, नीट करेगा। तो आपका कोई ऐसा एडवाइस है, कोई मॉम टिप है आपके पास कि जो आप पेरेंट्स को या मदर्स को, फादर्स को बोलना चाहोगे कि भाई बच्चे जब आपके पास आ रहे हैं कुछ चीज़ को ले करके, तो उनको वो चीज़ करनी देनी चाहिए? मैं तो यही कहना चाहूँगी सभी पेरेंट्स से कि बच्चों को जिसमें उनकी करने की इच्छा है, उनको उसी में ही करवाना चाहिए। अगर मैं अपनी तरफ से भी कोई भी उनको करती हूँ कि आप नहीं, आपको यही करना है, तो बच्चा पता नहीं कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, वो कितना टाइम लेगा उस चीज़ को करने के लिए। इसलिए बच्चे को सपोर्ट करना चाहिए जितना हो सके, तो बच्चा उस हिसाब से आगे ही बढ़ेगा। वो भी अपनी पूरी कोशिश करेगा कि वो आगे बढ़े और कामयाबी पाए। चलिए ठीक है मैम, कॉन्ग्रेचुलेशंस अगेन, एंड सर को भी कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलिएगा। थैंक यू फॉर कमिंग टू द पॉडकास्ट, श्वेता एंड मैम, and all the best. So guys, do share this podcast, subscribe to the Iconda channel. We're going to come up with more IPMAT toppers, and all the best for your IPMAT preparation.